हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 9 जो कि है फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया यानी भारत की भौतिक भूगोल। कहते हैं भारत की भौतिक भूगोल काफ़ी मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। इवन कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी मान्य रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is most important here, drainage system in India. That is important. Drainage system in India. The drainage system is referred to be a system of flow of surface water mainly through the rivers. An area drained by the rivers and it is a tributaries is called a drainage basin. The drainage system is related to a number of factors like a slope of land and geological is structure, amount and velocity of water. That is important. And the rivers, though there is a drainage system, perform a several tasks. These are excess of water removed from a particular area and transportations of sediments from one place to other, and providing to natural source for the irrigations and the maintaining their water table of regions. And traditionally rivers were useful as a source of abundant and fresh water navigation. In today's world, rivers important as a reasons to be include a hydropower generation and setting up to the water-based industries. That's important also. These are the also important tourist attraction for the activities such as boating, river rafting, and cliff as jumping because there is a utility. The river are important for the life and hence is regarded as their lifeline. Many cities are located along the rivers and their densely is populated. Delhi on the bank of Yamuna, Patna is along Ganga, and Guwahati along is Brahmaputra. The Nasik along the Godavari and Cuttacks along to the Mahandris are some example. On the basis of reason to the drainage can be divided into two parts. You know that there is a most important here. Delhi on the bank of Yamuna, Patna along to Ganga, and Guwahati along to Brahmaputra, and Nasik along to Godavari, and Cuttack along to Mahandri. This is important for a drainage system here. But there are basin origin to drainage can be divided into two parts: the Himalayan drainage system and Peninsula drainage system. There is a two here. The important. Here the tributaries. Tributaries mean a stream river that flow into the large river. Example here Yamuna. Yamuna is a tributary. Tributary mean a stream or river that flow into a large river. And delta here, a triangular shape is a land to be a mouth of a river forming from the deposition of slight sand and small rock that flow up downstream in the river. There is a Ganga delta that is important. Now, estuaries is a particular is enclosed a coastal body of water, and where is the salty tidal water mixes with the fresh water of the river.
there is a Narmada rivers make on state. There is important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारत में जल प्रवाह प्रणाली। देखिए भारत में जल प्रवाह प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्हीं कारणों से जो है भारत में जितने भी रेनफॉल होते हैं और ये प्रभाव एक क्षेत्र बन जाते हैं और इसके बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ से पानी जो है बहुत ही सुविधापूर्वक निकल जाती है। कहते हैं जल प्रवाही प्रणाली सतह के पानी के मुख्य रूप से नदियों के मध्यम प्रवाह होती है। तो देखा जाए तो भारत में जो है ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ रिवर को ही माना जाता है क्योंकि भारत के हर क्षेत्र में रिवर कोई ना कोई मौजूद अवश्य है। तो उससे जो है पानी ड्रेनेज होना एक बहुत ही आसान बना देता है और ये जाके जो है बड़े बड़े समुद्रों में या बंगाल की खाड़ी में ये गिरते हैं। तो भारत में देखा जाए तो जो प्रवाह प्रणाली है वो रिवर को ही माना गया है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अववाहित क्षेत्र बेसिन कहलाता है। अब देखिए कभी कभी बेसिन पूछा जाता है कि बेसिन क्या होता है, तो वो बेसिन एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा। अब देखिए एक नदी है और नदी है, आप सोचिएगा सहायक नदी का क्या मतलब हुआ। अगर मान लीजिए कि नदी जब बह रहा है तो उसमें बहुत सारी नदियाँ आके आपस में मिलती है और उसको सहायता करती है उसको फ्लो की, यानी पानी के जो बहाव होती है उसको तेज़ करती है। अकेला नदियाँ स्वयं नहीं बह सकती इतनी तेज़ी से, इसलिए कई नदियाँ आके इसको जो है वो उसके साथ हेल्प करती है। तो इसे हम सहायक नदी द्वारा कहा जा सकता है और जो सहायक नदी द्वारा अववाहित क्षेत्र होते हैं उसी को ही बेसिन कहा जाता है। जल प्रवाह प्रणाली के लिए भूमि की ढाल, भूगर्भिक संरचना और पानी की मात्रा से संबंधित है। कहते हैं जल प्रवाह प्रणाली के माध्यम से एक नदी कई कार्य करती है, यानी जल प्रवाह प्रणाली के माध्यम से एक नदी कई कार्य करती है और ये एक विशेष क्षेत्र से अधिक पानी बहाने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादों का परिवहन सिंचाई के लिए प्राकृतिक स्रोत को बनाए रखता है। अब देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गया कि एक विशेष क्षेत्र के पानी बहाने यानी पानी बहने के लिए ये एक रास्ता देता है। दूसरा है कि ये अवसादों का परिवहन करता है। अवसाद मतलब होता है जब देखिए जब नदी उफान पे होता है तो नदी में जो है प्योर वाटर आपको नहीं दिखेगा, उसमें बहुत से जो है मिट्टी दिखेगी, बहुत से जो है अपशिष्ट पदार्थ दिखेंगे। तो ये सारे अवसाद कहलाते हैं और नदियाँ जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को जो है समुद्र में ले जाके गिर देती है। तो ये दूसरे करती है सिंचाई के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में बनाए रखता है। और देखा जाए जिन क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह होता है वहाँ पर नदियों से ही सिंचाई का काम लिया जाता है, क्योंकि जब नदियाँ बह रही हो तो हमें अंडरग्राउंड वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहाँ पर नदियों से ही पानी से सिंचाई की जाती है। देखा जाए परंपरागत रूप से नदियाँ प्रचुर मात्रा में ताज़ा पानी और जल परिवहन स्रोत के रूप में उपयोग करता है, यानी नदियाँ जो है प्रचुर मात्रा में ताज़ा पानी और जल परिवहन करता है। और आज दुनिया में नदियों के महत्व में जो है जल विद्युत उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है और नदी, नौकायान, चट्टानों में कूदना और पानी के धाराती उद्योग की स्थापना बढ़ती चली जा रही है। आज उद्योग वहाँ पर लगाए जा रहे हैं जहाँ पर जो है नदी के स्रोत मिलते हैं, क्योंकि बहुत से अपशिष्ट पदार्थों को जो है नदियों में ही विसर्जित की जाती है जो सही नहीं है और इन्हीं कारणों से जो है नदियाँ जो है काफ़ी प्रदूषित हुई है। ये भी नौका विहार जैसे गतिविधियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षक है। तो देखा जाए आज के समय में जो ये नदियाँ हैं और ये जो प्रवाह प्रणाली के क्षेत्र में जो नदियाँ आती है उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, चाहे पर्यटक के लिए भी काफ़ी आकर्षक का स्रोत बनता है। उनकी प्रतियोगिता के कारण नदियाँ जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं नदियाँ जो होता है किसी भी जीव जंतु के लिए और जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होती है। अगर आप पुराने समय में चले जाओ जहाँ पर आदि मानव लोग रहते हैं तो जितने भी आदि मानव रहना पसंद करते थे वो नदियों किनारे ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि सारे आवश्यकता उनको नदियों से ही पुण्य हो जाता था। इवन कि अगर आज के मॉडल ज़माने में देखिए जितने भी शहर बसे हुए हैं सबके सब किसी न किसी नदियों के आसपास ही बसे हुए हैं। इसके कारण ये है कि नदियों से बहुत कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। कई नगर नदियों के किनारे स्थित हैं और घनी आबादी वाले भी हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि इसमें बहुत से नदियाँ, जैसे दिल्ली जो है यमुना के किनारे बसा हुआ है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ है, नासिक जो है गोदावरी के किनारे बसा हुआ है और कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। आदि बहुत से
शहर है जो नदियों के किनारे बसा हुआ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गुवाहाटी किस नदी के पास में बसा हुआ है, नासिक किस के पास बसा है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यमुना नदी के किनारे कौन से शहर बसा हुआ है, गंगा के नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बना देते हैं एग्जाम व्यू से, और आप इन्हीं क्वेश्चनों को जो है इग्नोर करते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आता है कि उत्पत्ति के आधार पर जल प्रवाह के दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हिमालय जल प्रवाह प्रणाली है और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली। तो ये दो प्रवाह प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं हिमालय जल प्रवाह, जो हिमालय से नदियाँ निकलती है, और जो प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली है, तो इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। उसके पश्चात है कुछ शब्द हैं, जैसे देखिए सहायक नदी। सहायक नदी का मतलब यही होता है कि एक धारा या नदी जो एक बड़ी नदी में बहते हुए जा मिलती है। मैंने आपको बताया भी था कि वो नदियाँ होती है जो एक दूसरे नदियों के सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। यानी एक धारा या नदी के जो बड़ी नदी में बहते हुए जा मिलती है, यानी एक बड़ी नदियाँ बह रही है, उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ के आपस में मिलती है बड़ी नदी में, तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं। जैसे यमुना गंगा में मिलती है, यमुना जो है गंगा एक बड़ी नदी है और इसमें जाके मिलती है, तो ये क्या कहलाएगी, सहायक नदी। यमुना नदी जो है यहाँ पर सहायक नदी कहलाएगी। अगर हम डेल्टा की बात करें तो नदी किनारे हिस्से में मुहाने पर जो है छोटे रेत गाद जमा होने से एक त्रिकोणीय आकार भूमि विकसित होती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। जैसे गंगा डेल्टा, आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे बहुत से खेत होते हैं, उसमें बहुत से छोटे रेत गाड, यानी ये सारे बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं उपजाऊ क्षमता के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जिन क्षेत्रों में काफ़ी पानी इकट्ठा होता है और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, उन क्षेत्रों में जो है नदियाँ अपने साथ महत्वपूर्ण मिट्टी को बहा के ले आती है, तो इसी को ही डेल्टा कहते हैं। देखा जाए तो गंगा के क्षेत्रों में कई क्षेत्र में डेल्टा का क्षेत्र बने हुए हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छी उपज भी होती है। उसके बाद है एस्चुरीज, यानी एस्चुरीज मतलब होता है आशंका रूप से संलग्न समुद्री नमकीन पानी नदी के ताज़े पानी के साथ मिलता है। यानी नमकीन पानी जो है ताज़े पानी के साथ मिलता है। जैसे नर्मदा नदी एक मस्यूरी बनाती है, जनरल सी बात है, तो ये आप समझ गए होंगे। The next topic is here, major drainage system in India. That is most important. Major drainage system here. As I mentioned earlier, on the basis of origin, there is the Indian rivers has been classified into two major drainage system here. Let us discuss the comparison between two drainage system here. The Himalayas river system. Himalayan river system, that is important. There are perennial rivers is originating from the glacier. The Himalayan river system, there is originate here a glacier. Rivers from a valley by the process of erosion. The rivers for a valleys by the process of erosion. The rivers are ideal for the irrigation purpose as they pass through the plant fertile tract. There is important also the plant fertile tracts here. And this arrives has been measuring as a course which is a shift over time. And next here, the Himalayan drainage system. The Himalayan drainage system, the most of the Himalayan rivers are perennials. That means they have water throughout the year. And this is because most of these rivers is originate from the glacier and snowy peaks. And they also receive water from the rainfall. The main river system in this category are here. The main rivers here. The Indo river system means Jhelum, Ravi, Vyas, Satluj. And next here, the Ganga river system here, Yamuna, Ramaganga, Ghagra, Gomti, Gandak and Koshi, etc. There is the most important. There is a Ganga river system here. There are Brahmaputra river system here, Divangs, Lohit, Tista and Meghana. There is etc. There is the most important. The Brahmaputra river system here. The next here, the important, the peninsular drainage system. There is important here, the peninsular drainage system. You have already studied about the peninsular plateaus.
Most of the peninsular river flow the eastward and enter into the Bay of Bengal. Only Narmada and Tapti rivers which flow the westward of the Western Ghat, and they are good for the generating of hydropower because these rivers form a rapid and waterfalls. The major peninsular rivers are Mahandis, Godavari, Krishna and Kaveri. There is a most important river of here peninsular river side here. On your screen, there is a most important map here, the Indian major river system. You know that there is a most important river system on your screen. There is all over India, there are rivers or different types of rivers of flow here. There is an important major river system in India here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, मुख्य जल प्रवाह प्रणाली। कहते हैं मुख्य जल प्रवाह प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर पहले उल्लेख किया गया है कि भारतीय जो है नदी तंत्र के दो प्रमुख जल प्रवाह प्रणाली में वर्गीकृत किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी उत्पत्ति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। दो जल प्रवाह प्रणाली के बीच तुलना की चर्चा यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर तो देखा जाए तो हिमालय नदी प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बात आता है कि हिमालय नदी प्रणाली, कहते हैं हिम नद से ये जो है उत्पन्न बारहमासी नदियाँ हैं। बारहमासी का मतलब होता है कि 12 मास ये नदी चलती रहती है, यानी इसमें पानी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए इसे बारहमासी नदियाँ कहा जाता है। उसके पश्चात है अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा नदियाँ घाटी बनती है, यानी ये जो है मिट्टी के अपरदन के कारण जो नदी घाटी बनती है, यानी घाटी एक बनती है जब तेज़ पानी के बहाव चलता है तो वहाँ पर एक दरार सी बन जाती है, तो एक घाटी का रूप धारण कर लेती है, यानी इसे नदी घाटी कह सकते हैं। वे मैदानों के उपजाऊ क्षेत्रों से गुजरती है, इसलिए नदियाँ सिंचाई के उद्देश्य के लिए आदर्श मानी जाती है। यानी देखा जाए तो वे मैदान उपजाऊ क्षेत्रों में काफ़ी क्षेत्रों से गुजरती है, और जहाँ जहाँ से नदियाँ गुजरती है वो क्षेत्र जो होते हैं काफ़ी उपजाऊ हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी साथ में बहा के ले आते हैं, तो ये और भी महत्वपूर्ण बना देता है। वह नदियाँ में जो है विसर्य बनते हैं जो समय के साथ मार्ग परिवर्तन करती रहती है। यानी देखा जाए तो ये नदियाँ जो है विसर्प बनती है, यानी ये सांपों की तरह अपना आकार जो है बना लेती है और मार्ग में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ती है। तो ये हिमालय नदी प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो था आपके समक्ष थी। उसके पश्चात है हमारे समक्ष हिमालय जल प्रवाह प्रणाली। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपने स्थान पे हिमालय जल प्रवाह प्रणाली। कहते हैं हिमालय नदियाँ अधिकांश बारहमासी है, ठीक है, यानी 12 मास जो है ये बहती ही रहती है, और इसका तात्पर्य यह है कि इसमें वर्ष भर जो है पानी होती है, क्योंकि ये नदियाँ अधिकांशतः हिमनद और बर्फ चोटियों से उत्पन्न होती है। देखिए ये नदियाँ जो है मुख्य तौर पर बारहमासी होती है, और बारहमासी होने का कारण सबसे बड़ी बात यही आता है कि ये हिमनद और बर्फ चोटियों से उत्पन्न होती है, यानी ये जो है ग्लेशियर जब पिघलती है तब इसका निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हो कि साल भर ग्लेशियर जो है पिघलता रहता है, तो इसी कारण जो ये नदियाँ जो है बारहमासी बहती ही रहती है, और ये वर्षा से भी पानी प्राप्त करती है। और इन श्रेणी में कुछ मुख्य नदियाँ इस प्रकार आपके समक्ष है। सबसे पहले है सिंधु नदी प्रणाली, इसमें झेलम आ जाता है, रवि, व्यास और सतलुज, जो मैक्सिमम जो है पंजाब साइड ही बहता है। उसके पश्चात है गंगा नदी प्रणाली, ये यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी आदि नदियों के जो है के रूप में ये बनाती है। उसके पश्चात देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है, जिसमें दिबांग, लोहित, तीस्ता और मेघना आदि जो है प्रमुख नदी प्रवाह है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। उसके पश्चात आता है प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली। प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। केवल नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाह करती है, और ये पानी बिजली पैदा करने के लिए काफ़ी उत्तम स्थल माना जाता है, क्योंकि ये नदियाँ जलपात एवं शिल्पिका बनाती है, और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य प्रायद्वीपीय नदी हो सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत बिजली भी पैदा की जाती है बखूबी।
तत्पश्चात हमारे समक्ष जो आता है एक मैप है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इससे एग्ज़ाम के लिए जो है मैप का क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर कि भारत प्रमुख नदियाँ यहाँ पर दर्शाया गया है कि भारत और इसके प्रमुख नदियाँ। तो आपके समझ देख सकते हो कि झेलम, रवि, सतलुज जो है पंजाब के साइड अपना महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है। वहीं यमुना, गंगा, ठीक है, ये सारे का जो उद्भव स्थल है वो है हिमालय ही आपको नज़र आ रहा होगा। हिमालय से ही इनका जो है सूत्रपात होती है और आगे ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। उधर आपको देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी है और महानदी भी आपको नज़र आ रहा होगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा। तो ये सारे के सारे जो है प्रमुख नदियां हैं जो भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।